السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تہجد کے وقت کا ایک بہت ہی بہترین سورہ اخلاص کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، وہ سارا ڈیٹیل آج کے اس ویڈیو میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ چونکہ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ ہے تو سورہ اخلاص کی پہلے فضیلت اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد انسان کو کیا ملتا ہے۔ ایک انسان جو اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا ہو، ایسے لوگ بھی اس عمل کو کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں بہار ہی بہار دیکھتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں۔ اور زندگی نام ہی مشکل اور آسانی کا ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آیا کرتے ہیں، پریشانیاں بھی آیا کرتے ہیں، غموں کا ڈیرا بھی ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، اور جب تک پریشانی نہ ہو تو پھر آسانی کا مزہ اور اس کا لطف انسان احساس نہیں کر سکتا، محسوس نہیں ہو سکتا۔ تو پریشانی آئے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو یہی درس دیا کرتے تھے، ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، اپنے امتیوں سے، کہ پریشانی کے عالم میں ہمیشہ لو اپنے رب کی طرف لگایا کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرو اور اسے یاد کیا کرو، اس کا نام لیا کرو۔ تو چونکہ انسان کی زندگی مشکلات میں اگر ہے تو اس عمل کو کرے، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو اس میں گرامی اور سورہ اخلاص کا جو وظیفہ ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ بے چین و بے قرار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، پورا معاملہ سمجھ لیجئے گا۔ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ حضرت میں نے اس طریقے سے عمل کیا اور جو ہے میرا عمل پورا نہیں ہوا، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ویڈیو جب تک آپ اینڈ تک نہیں دیکھیں گے، کیونکہ کچھ وظیفے کے شرائط ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں میں لاسٹ میں آخر میں بتایا کرتا ہوں۔ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ طریقہ ہے وظیفہ کا اور چھوڑ دیا چلے گئے، جبکہ اس کے آداب اس کو معلوم نہیں، اس کے شرائط اسے معلوم نہیں، اور اصل وقت جو ہے اور اس وقت میں کس انداز میں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہے جو جب تک آپ پورا نہیں دیکھیں گے، پوری طریقے سے نہیں سمجھ جائیں گے، تو پھر کوئی بھی کام ادھورا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آپ جب کسی تالے کو کھولنا چاہیں گے تو اس کے دندانے کو اگر آپ بڑھا دیں گے، چابی جو دندانہ تالا جو بنانے والے نے بنایا ہے، جو اس کا لاک ہے، تو اگر کوئی ایڈوانس ہو جائے کہ اس میں اضافہ کر دیا، میں تو بڑھا دیا تو تالا اور آسانی سے کھل جائے گا، نہیں کھلے گا۔ اگر اس کے دندانے کو کم بھی کر دیا جائے تو بھی تالا نہیں کھلے گا۔ جو لاک بنانے والے نے بنایا ہے اسی سسٹم سے، تو جو بزرگان دین نے جو عمل جو وظیفہ بتایا ہے، جس انداز میں کرنے کا اور جس طریقے سے کرنے کا، اگر اسی طریقے سے اور تعداد بھی وہی رکھیں گے تو پھر جا کر کے عمل جو ہے قبولیت کے درجے پہ پہنچنے کا زیادہ امکان ہوا کرتا ہے۔ لیکن کئی ہوشیار زیادہ ہوتے، بہت سارے کمنٹ باکس میں آپ دیکھتے ہیں جن کا قبول ہوتا ہے اور وہ دعائیں بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی کم پرسنٹ جو ایکسٹرا ہوشیار ہوتے ہیں، ایکسٹرا ایڈوانس ہوا کرتے ہیں، ان کے ہی، کیونکہ وہ پورے طریقے سے دیکھتے نہیں، اسکپ کر کے جو ہے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر ان کو بات سمجھ میں آتی نہیں، شرائط وغیرہ انہیں پتہ ہوتا نہیں، پھر وہ جو ہے محنتیں کر لیتے ہیں اور کوئی فائدہ اسے حاصل ہوتا نہیں۔ تو ایسی غلطی بالکل بھی آپ نہیں کیجیے گا۔ تو چلیے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس چیز کا ہم عمل کر رہے ہیں، پہلے ہم اس کی فضیلت کو جان لیتے ہیں، اس کے مرتبے اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعام سے نوازتا ہے۔ پہلے وہ کچھ حدیثیں، چند حدیثیں ایک دو ہیں جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تاکہ جس کا عمل کر رہے ہیں اس کے فضائل سے بھی ہم باخبر رہیں، تاکہ عمل کرنے کا مزہ اور بڑھ جائے۔ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد
किसी से कोई कलाम किए बगैर सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा तो उस दिन उसके लिए 50 सिद्दीकीन के अमल के बराबर सवाब अता किया जाता है। एक सिद्दीकीन के सवाब अगर किसी को मिल जाए तो भाई उसकी दुनिया व आखिरत संवर जाती है। सिद्दीकीन अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, सच्चे लोग हुआ करते हैं और जिनका नाम अल्लाह के यहाँ सच्चे लोगों में लिख दिया जाता है तो उसके सवाब का आलम क्या होगा। लेकिन फजर की नमाज के बाद ये सूरत इतना पावरफुल है कि अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसे 50 सिद्दीकीन के अमल के बराबर सवाब लिखा जाता है। तो हम फजर की नमाज के बाद जो पढ़ना है उसको तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन अमल जो हमें करना है वो तहज्जुद की नमाज के बाद, और जो तहज्जुद की नमाज है वो रब की लाडली इबादत है। तो उस वक्त जब हम पढ़ेंगे किस अंदाज में तो वो भी बताऊंगा, और उसका जो सवाब है और उसका जो अज्र है और उसके करने के बाद इस अमल को जो उसे मिलता है वो फिर आप सुनने के बाद दंग रह जाएंगे इंशाअल्लाह। एक और हदीस आपको सुनाऊं। हज़रत मुआज़ बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा 10 टाइम्स बस 10 मरतबा सूरह अखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। ऐसे ही बैठे हैं और सूरह अखलास पढ़ने का दिल किया, 10 मरतबा सूरह अखलास पढ़ लिया, एक महल जन्नत में आपके लिए तैयार हो गया। सुबहान अल्लाह। ये जो सूरत है जो मैं जिसका वजीफ़ा बता रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि किस किस अंदाज में अल्लाह ताला उसे नवाजता है, गज़ब के दरवाज़े बंद कर देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिया करता है, और भी बहुत सारी है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहले वजीफ़ा किस तरीके से करना है वो बता देता हूँ, कितनी बार सूरह अखलास पढ़ना है, फिर आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से दिन। ये आपको 9 दिन का ये अमल है, 9 दिन करना है, तो रेगुलर नहीं करना है 9 दिन। इसी रमज़ान के महीने में मैं जो है आपको बताऊँगा कि कौन कौन से दिन आपको ये अमल करना है, फिर आप आखिर में आपको बताऊंगा, फिर वजीफ़े के जो शराइत हैं वो भी बताऊंगा। पहले आप वजीफ़ा सुन लीजिए कि कितनी मरतबा पढ़ना है और इसके फ़जीलत क्या है। पहले ये सुनिए कितनी मरतबा पढ़ना है और इसके फ़जीलत क्या है वो सुनिए। तंबीहुल गाफिलीन में है, जो शख्स सूरह अखलास बावजू 300 बार पढ़ता है, हमको जो अमल करना है वो 300 मरतबा का करना है तहज्जुद की नमाज के बाद। तो वक्त भी बताऊंगा कि किस वक्त आप उठेंगे ताकि आपका वजीफ़ा पूरा हो जाए। तो 300 मरतबा सूरह अखलास पढ़ने की जो फ़ज़ाइल है वो सुन लीजिए ताकि फिर आपको अमल करने का मज़ा और ज़्यादा आए। तो बावजू 300 बार सूरह अखलास पढ़ता है उसे 9 फ़ायदे हासिल होते हैं। बुजुर्गान दीन ने कहा है उससे 9 फ़ायदे हासिल होते हैं। वो कौन कौन से, एक एक करके आप देखें। नंबर 1, जो शख्स 300 मरतबा इसे पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर देता है। 300 गज़ब के दरवाज़े बंद हो गए अल्लाह ताला की तरफ से। अब देखो दूसरा, उसके लिए 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। गज़ब के दरवाज़े जिस इंसान पे बंद हो जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत वैसे ही बेहतर हो जाए, उसे कौन रोकने वाला, उसे कौन टोकने वाला। फिर अल्लाह ताला इस पर यह इनाम कर रहा है कि 300 दरवाज़े रिज़्क़ के भी खोल देता है, फरावानी ही फरावानी उसे रिज़्क़ की अता कर देता है। नंबर 3, 300 दरवाज़े उसके पढ़ने वाले के लिए रहमत के भी खोल देता है। सुबहान अल्लाह। और नंबर 4, अल्लाह ताला उसके पढ़ने वाले के लिए अपने इल्म से इल्म अता फरमाएगा और अपने सब्र से सब्र भी अता फरमाएगा। यानी बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं कि इल्म में महारत हासिल कर लेते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन उसकी महारत, उसकी बसीरत बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाया करती है, लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और सब्र की दौलत भी उससे मिल जाती है। अब आगे देखिए नंबर 5, उस शख्स 36 मरतबा कुरान पढ़ने का भी उसको सवाब मिलेगा और
उस शख्स के 50 साल के गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। नंबर 7, उसके पढ़ने वाले के लिए 70 महल जन्नत में बनाया जाएगा। हर एक याकूत और मरजान के होंगे और हर एक महल के 70,000 दरवाजे होंगे। सुभान अल्लाह। 300 मरतबा। कोई ज़्यादा नहीं वक्त लगेगा भाई। हम 3-3 घंटे 4-4 घंटे सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा देख लेते हैं, मोबाइल पे एक मूवी देखने में 2-2 ढाई घंटा लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। कभी इस तरीक़े से अपने रब की तरफ आ कर के दिल लगा करके इबादत करके देखिए, क्या बेनिफिट है। अल्लाह अकबर। और नंबर 8, अल्लाह ताला उसको 2000 नफिल नमाज पढ़ने के बराबर सवाब अता करेगा। नंबर 9, 300 मरतबा पढ़ने वाला जब मरेगा तो उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते भी शामिल होंगे। तो कौन है जो इस अमल को छोड़ना चाहे? मुझे नहीं लगता कि इस महीने में ये अमल कोई छोड़ देगा। तो ज़रूर इस अमल को करें। 300 मरतबा पढ़ना है तहज्जुद की नमाज के बाद। देखिए, आप तरावीह की नमाज़ पढ़ें, तरावीह की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है कुछ देर सो जाए, घंटा 2 घंटा, और आप जो है 3 बजे के समथिंग बेदार हो जाए, वज़ू वग़ैरह कर करके 2 रकात 4 रकात तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ले और जा नमाज पे बैठे, तस्बीह ले ले और 3 बार दरूद शरीफ पढ़ ले। 3 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप 300 मरतबा सूरह अखलास पढ़ ले, फिर 3 बार दरूद शरीफ आप पढ़ ले। ठीक है, ये अमल इस तरीक़े से करना है। फ़ज़ाइल अभी मैंने आपको सुना दिया और इस तरीक़े से ये अमल करना है। अब जो मैंने आपको बताया है कि 9 दिन करना है, 9 रात करनी है आपको, तो वो कौन कौन सी रात में करनी है? तो आप ये समझ लो कि ये जो अमल है ना, आपको करनी है लैलतुल क़द्र की रात में। लैलतुल क़द्र की रात में करनी है, 21वीं की रात को करनी है, 23वीं की रात को करनी है, 25 की रात को करनी है और 27 की रात को करनी है और 29 की रात को करनी है। ये तो 5 दिन हो गए। ठीक है, 5 दिन ये हो गए और फिर आपको जो है ये 4 दिन अलग जो है आपको जो रमज़ान के ये 4 दिन जो 20 तारीख से पहले हैं वो कर लेना है। 9 रात आपको करनी है, तो 4 दिन तो पहले आप 20 तारीख से पहले 4 रात कर ले। जिस रात को आप बेदार हो उस रात को कर ले। 20 तारीख से पहले जिस रात को आप बेदार हो कर ले। फिर जो है ये 5 रातें जो है आपको ताक रातों में रमज़ान शरीफ के जो है करनी है, यानी 21वीं को, 23वीं को, 25 को, 27 और 29 की रात को करनी है। तो ये 5 रातें इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने जो ये अमल बताया है सबसे पहले फ़ज़ाइल इसीलिए आपको बताए कि इसके बेशुमार फ़ज़ाइल है। पहले आपको बताता कि इस तरीक़े से इस रात में करनी है, तो हो सकता है आपको पहले मुश्किल नज़र आए और आप वीडियो छोड़ करके चले जाए। अगर वीडियो छोड़ करके चले जाते तो फिर ये फ़ज़ाइल जो मैंने आपको बयान किया है वो आपको समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने तरीक़ा बताने से पहले आपको फ़ज़ाइल बयान कर दिया ताकि हर इंसान इस रमज़ान इस अमल को कर करके अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर बना ले। दोस्तों, एक गुजारिश ये भी करूँगा कि रमज़ान शरीफ की ताक़रातों में जब अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरीक़े से आप सब की खिदमत करता रहूँ। अल्लाह ताला हम सब की आखिरत को बेहतर और दुनिया को भी बेहतर और दीन को भी बेहतर बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।